Thoracic cage is a very high yield topic in anatomy. Questions from the thoracic cage are frequently asked from MBBS, Viva, and NEET PG exams. In this video, I will explain the thoracic cage in simple and exam oriented way. Hello everyone, I am Dr. Harshul Singh and welcome to Anatomy with Dr. Harshul. Today we will discuss about the thoracic cage which forms the bony framework of the chest and protects the vital organs of heart and lungs. Now let's proceed to definition. Thoracic cage is mainly a skeleton of thorax. It is an osteocartilaginous framework that forms the chest and encloses the thoracic cavity. ये एक बोन और कार्टिलेज का फ्रेमवर्क है जो कि चेस्ट और थोरेसिक कैविटी को एनक्लोज करता है. और जो डेफिनेशन है जो कॉमनली आस्क्ड होती है वाइवा में. नाउ लेट्स गो टू, एज यू कैन सी दिस इज द एंटीरियर व्यू and this is the posterior view. We will discuss about that later on. What are the functions mainly? The functions are it protects the heart, lungs and the great vessels. Thoracic cage provides attachment to the muscles of respirations. It also plays an important role in breathing movement, as you know, when during inspiration the diaphragm moves downward and during expiration the diaphragm moves upwards. This also increases or decreases the intrathoracic pressure. It also supports the upper limb through the clavicle. That is the function, and these are the very commonly asked questions. Now what is the shape mainly? Thoracic cage is mainly truncated shape, as you can see in the diagram. The diagram is from the BDC. You can also see from your book. The shape is truncated cone shaped, which is narrow above and broad below. Narrow above and broad below. Above is the neck. The thoracic cage is in continuation with the root of neck, and lower it is continuation with the abdomen. The diaphragm is, as you can see, is concave downwards toward the abdomen. So इस डायग्राम को देख के हमको ऐसा लगता है कि जो थायरॉक्स है नॉर्मली जो होता है उसका साइज जो अपन को दिखता है आउटर साइड से वो उतना नहीं होता. और अगर ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे तो अडल्ट में रेनिफॉर्म बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड होगा और इन्फेंट के अंदर सर्कुलर होगा. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स? The thoracic cage consists of 12 thoracic component. The thoracic cage consists of 12 thoracic vertebra with intervertebral disc posteriorly and 12 pair of ribs with their cartilage laterally and sternum anteriorly. This is asked in Viva. The 12 pair of ribs, intercostal vertebra and sternum. Now ribs. First of all, what are the basics of ribs? We will see. There are 12 pair of ribs. They are classified into true ribs, false ribs and floating ribs. Total 12 ribs are 12 in pairs, long curved flat bones that are posterior and articulate with the thoracic vertebra and anterior and articulate with the costal cartilage. Or mainly the ribs are articulate as follows. पीछे की तरफ posteriorly each rib articulates posteriorly with the vertebral column, और वर्टेब्रल कॉलम के साथ उसमें इंटरवर्टेब्रल डिस्क भी होती है जो कि वर्टेब्रल कॉलम आर्टिकुलेट करता है उससे. अब एंटीरियरली अपन देखेंगे उसमें 3 पार्ट में देखेंगे. जो अपर की 7 रिब्स होती हैं उनको अपन ट्रू रिब्स या वर्टेब्रो स्टर्नल रिब्स भी बोलते हैं, जो आर्टिकुलेट करती हैं स्टर्नम से थ्रू देयर कार्टिलेजेस. जो नेक्स्ट 3 रिब्स होती हैं 8th, 9th एंड 10th, उनको अपन वर्टेब्रो कॉन्ट्रल रिब्स भी बोलते हैं जो कि कार्टिलेज से करती हैं अपनी, जो कि जैसे कि 8th वाली 8th, 9th और 10th करेगी, 7th के और 6th के जो कोस्टल कार्टिलेज है उनके कांटेक्ट करती है. और जो लास्ट की तो 2 रिब्स होती हैं 11th एंड 12th वो फ्री रिब्स होती हैं, इसलिए उनको फ्लोटिंग एंड वर्टिब्रल रिब्स भी बोलते हैं. एज वी हैव क्लासिफाइड देयर आर ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड द floating ribs. True ribs 1 to 7, those has direct attachment to the sternum. False ribs 8, 9th and 10th जिनका indirect attachment होता है,
और फ्लोटिंग रिब्स कोई अटैचमेंट नहीं होता। ये भी एक हाईली एमसीक्यू बनाया जाता है अपने नीट पीजी एग्जाम में। नाउ द डिफरेंस बिटवीन टिपिकल एंड द एटिपिकल रिब्स। Typical ribs are from 3rd to 9th ribs, and atypical ribs are 1st, 10th, 11th, and 12th ribs. Second ribs may be also atypical ribs. We will see here. The typical ribs और atypical ribs में क्या अंतर होगा? जो हेड होता है उनका दो आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं विथ टू एडजेसेंट वर्टिब्रा टिपिकल रिब्स के अंदर, और उस नेक और ट्यूबरकल होता है इसमें, और उसका जो ट्यूबरकल होता है उसमें आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं फॉर द करस्पॉन्ड ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। और जो इनमें शाफ्ट्स होती है टिपिकल रिब्स के अंदर, जो एंगल ऑफ रिब्स शो करती हैं कोस्टल एंड कोस्टल ग्रुप। यहाँ पे एक एंगल होता है और एक कोस्टल ग्रुप होती है। अब एंगल की यहाँ पे अपने को इंपॉर्टेंस ध्यान रखनी है। एंगल ऑफ रिब वो जो होता है वो वीकेस्ट पॉइंट होता है जहाँ पे मेजर फ्रैक्चर्स या ब्रोकन पार्ट ज़्यादा हो सकता है किसी भी इंजरी से। एटिपिकल रिब्स कौन से होते हैं? 1st, 2nd, 10th, 11th एंड 12th। फर्स्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका जो क्योंकि ये शॉर्ट ब्रॉड एंड फ्लैटेंड होता है, इसमें सिंगल फैसेट्स होता है हेड पे और ग्रूव्स फॉर सबक्लेवियन वेसल्स यहाँ पे होता है। सेकेंड ट्रिप पे अपन को एक रफ एरिया मिलेगा जिसको ट्यूबरोसिटी भी बोलते हैं फॉर स्ट्रेटस एंटीरियर का अटैचमेंट के लिए। थर्ड में सिंगल फैसेट होता है हेड में, और 11th एंड 12th में को फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। इनमें कोई नेक या कोई ट्यूबरकल नहीं होता। नेक्स्ट इज द स्टर्नम। स्टर्नम क्या होती है? एक फ्लैट बोन होती है जो कि मिडलाइन अपनी बॉडी की मिडलाइन पे होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, मैन्यूब्रम, बॉडी एंड द जिफाइड प्रोसेस। यहाँ पे बोन मैरो का एस्पिरेशन कराया जाता है अपने। Intercostal spaces. Intercostal spaces are the spaces between the adjacent ribs. It contains intercostal muscles and neurovascular bundles. अब ये अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें अपन एक निमोनिक होता है VAN, order from above to downwards, vein, artery and nerves. As you can see, intercostal nerve, intercostal artery and intercostal vein. ये अपना VAN, vein, artery, nerve, vein, artery, nerve. Now what are the clinical and the exam points in this? The chest wall, बच्चे की जो चेस्ट वॉल होती है वो इलास्टिक होती है और जो फ्रैक्चर्स होता है वहाँ पे बहुत रेयर होता है, लेकिन जो अडल्ट में वो रिजिड हो जाती है। जो उसका जो इलास्टिक जो कार्टिलेज होता है उसका कैल्सिफिकेशन होने के कारण वहाँ पे इंजरी हो सकती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वॉयलेंस के थ्रू। इनडायरेक्ट वॉयलेंस यानी कि क्रश इंजरी से, जो कि जो वीकेस्ट पॉइंट जो मैंने बताया था एंगल ऑफ द रिब्स पे होता है, वहाँ पे टूट जाती है वहाँ से रिब्स मेनली। और लेकिन जो अपर 2 रिब्स और जो लोअर 2 रिब्स होती हैं, अपर 2 रिब्स तो अपने क्लेविकल से प्रोटेक्टेड रहती हैं और जो लोअर 2 रिब्स फ्री फ्लोटिंग होती हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत कम इंजरी होती है। अब नेक्स्ट इज हिकअप्स। हिकअप्स क्या होते हैं? आप हिचकी बोलते हैं जिसको अपन, वो होती हैं क्योंकि स्पास्मोटिक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है अपने डायफ्राम का जब अपना ग्लोटिस बंद हो। यूजुअली ये गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह से होता है, लेकिन कई बार फ्रेनिक नर्व का इरिटेशन हो जाए या फिर यूरेमिया हो जाए या फिर हिस्टीरिया हो जाए, उस वजह से भी अपन को हिकअप्स होते हैं। एंड द लास्ट इज पोस्ट ऑपरेटिव न्यूमोनिया इन द चिल्ड्रन में जो 2 साल तक की एज के जो बच्चे होते हैं उनमें रेस्पिरेशन एब्डोमिनल होता है बिकॉज द रिब्स आर हॉरिजॉन्टल। अब पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है जब एब्डोमिनल सर्जरीज का बच्चे में, तो बच्चा रेजिस्ट करता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग को एंड द लंग सीक्रेशन अक्यूमुलेट्स कॉजिंग द निमोनिया। लेट अस क्विक रिवाइज। thoracic cage is an osteocartilaginous framework. It protects the heart and the lungs. Components are vertebra, ribs and the sternum. Ribs true, false and floating, and the intercostal spaces जो होता है उसमें अपने वेसल्स, आर्टरी और नर्व होती है। Thank you everyone. Please like, share and subscribe to the Anatomy with Dr. Harshul if you find this video helpful. Thank you.